वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशंस है तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो मेन कंपोनेंट्स है फॉर कम्युनिकेशन उसका स्टडी करेंगे। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। हाउ द कम्युनिकेशन विल बी हैपन बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। तो उसका हम एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो उस पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स इन theory एग्जाम, ओके। So communication process is step by step structured phenomenon as against mere conversation. It consists of those integrated steps or parts through which messages are sent from sender to the receiver. ठीक है। So the communication जो process है that is a step by step, okay. उसमें अलग अलग steps होंगे, and a structured phenomena means it consists of a particular structure, okay, and that is against a conversation between, it will be a conversation between a two person, okay. So it consists of integrated or irrelated steps or parts through which message are sent from sender and receiver. So it is clear that sender and receiver will be present for conversation or for a communication, okay. Then we'll see the, it's simply ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ये आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है फॉर अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, ओके। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स फॉर कम्युनिकेशन। तो उसका हम एक सिंपल फिगर ड्रॉ करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। आपने ये स्टडी किया तो भी चलेगा, ठीक है। एंड इन सिंपल लैंग्वेज इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंडर, ठीक है। तो जो जो मेन कंपोनेंट्स है प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड, तो इसमें वो सभी कंसिस्ट रहेंगे। फर्स्ट इट रिक्वायर द सेंडर एंड रिसीवर, सो दैट इज सेंडर, एंड सेकंड वन इज द receiver. So these two components are essential for communication, okay. Then there is a exchange of message between sender and receiver. So if sender sends a message to the receiver, okay, so message is again a third component which is essential, okay. So that is message. And next one is the channel. So there is a channel between sender and receiver. That channel may be a wired or wireless, okay. So this is the channel between sender and receiver through which message will be transferred. And then last one is the feedback from the receiver to the sender. So these are the 5 main components which are present in any communication process, okay. So first sender is required to send a message, then it is received by the receiver, okay. That message is traveled through a channel. That channel may be a wired or wireless, okay. And then when the message will be received at the receiver end, that receiver will send the feedback to the sender. Means what, he will know that the message is successfully delivered
to the receiver. So that is the process of communication, and which is explained in this figure also. So first, developing an idea by the sender, जो मैसेज सेंड करना है या जो डेटा सेंड करना है, ओके, थ्रू अ कम्युनिकेशन, that is first develop. Then second block will be a encoding, means that data or that information or message will be encoded in a suitable form. Okay, so simply this is the transmitter in short, and this is the receiver, that is RX. Okay, so again this is TX, sender means transmitter, यहाँ से transmit होगा message at the receiver end, it will receive the message. Then after encoding in suitable form, that message will be transferred. That third block is the message block. Okay, and fourth block is selecting a medium. We have to select a medium to transfer the message from the sender or the transmitter to the receiver. That medium can be a wired or वायरलेस मीडियम. ओके, जैसे आप लेटर राइट कर सकते हो, ठीक है, एंड वो सेंड कर सकते हो पोस्ट थ्रू. सेकंड हो गया, मीन्स वो आपका एक हार्ड कॉपी हो गया, ठीक है, जो आप पोस्ट से सेंड करोगे. सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज़ मेल. ओके, तो ये वायरलेस हो गया. तो इसी तरह से मीडियम अलग अलग है, ठीक है. देन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, अगर आप मेल सेंड करते हो, थ्रू मेल कम्युनिकेशन कर रहे हो, so that is a wireless communication, and that is transmission of mail or message. Then at the receiving side, receiving message by the receiver. ठीक है, तो जो मैसेज आपने ट्रांसफ़र किया है, जैसे आपने कोई मेल सेंड किया है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, that mail will be received by the receiver. Then it will be a decode by the reader. Okay, तो जो मेल सेंड किया उसको वो क्या करेगा, रीड करेगा, एंड इट विल अंडरस्टैंड व्हाट द मैसेज इज सेंड बाय द दिस सेंडर. क्या मैसेज सेंड किया है सेंडर ने, ठीक है, एंड देन ही विल सेंड द फीडबैक. ओके, तो वो एक मेल से अगर सेंडर ने रिसीवर को मेल किया है, ठीक है, सो थ्रू मेल द कम्युनिकेशन विल बी हैपन. सो द reader or the receiver will send a thank you email to the sender. Okay, so ये क्या होगा, एक तरह का फीडबैक कि आपने जो मेल सेंड किया है, ठीक है, दैट विल बी सक्सेसफुली रिसीव, एंड थैंक्स लेटर वो सेंड कर देगा सेंडर को. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फीडबैक. ओके, या हो सकता है जो मेल थ्रू जो मैसेज सेंड किया है उस पर कुछ फीडबैक होगा, वो फीडबैक वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है. दैट कैन बी अ सेंड बाय द योर रिसीवर टू द सेंडर. मीन्स क्या होगा, ये कम्युनिकेशन होगा टू वे. फर्स्ट सेंडर विल सेंड द मैसेज टू द रिसीवर, एंड देन थ्रू फीडबैक रिसीवर विल सेंड द मैसेज टू द अगेन सेंडर. ओके, सो इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. सो दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो इट रिक्वायर्ड द 5 मेन components. Sender, receiver are necessary for communication purpose. Third component is the message, which is exchanged between sender and receiver, and for sending a message it requires a channel. It is compulsory. Okay, it is a wired or wireless channel. Okay, and fifth one is the feedback, which is sent from your receiver to the sender. Okay, सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो अगर इस पर क्वेश्चन आया तो आपको ब्लॉक डायग्राम निकालना है, या सिंपली ये जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें सारे कंपोनेंट्स आपको लिखने, एक लिस्ट बनाना है की कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक, एंड वन बाय वन सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, हाउ द कम्युनिकेशन विल बी हैपन. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक में इसी ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया है डिटेल में. उस पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस. ओके, तो अभी इसको हम इन शॉर्ट लेते हैं अभी, ठीक है.
क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेप्स इन विच कम्युनिकेशन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, तो ये हमने देखा ऑलरेडी कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा, विच इज़ अ कम्युनिकेशन. ओके, दिस प्रोसेस स्टार्ट विथ conceptualization an idea or a message by sender and with the feedback from the receiver end. Okay, so ये जो process है that start with a concept of an idea means a message sent by sender and feedback from the receiver end. ठीक है, तो sender जो message send करेगा, receiver will send a feedback on that. The communication process consists of following steps. So these are the steps, okay, which are seen in the block diagram. So first step is developing an idea by the sender. A sender is an initiator and opening batsman of this process. ठीक है, तो सेंडर एक मेन पार्ट है. जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा तभी ये सब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा, विल बी अचीव. Okay, so a sender is the indicator and opening batsman of this process. This stage is the planning stage. तो फर्स्ट जो स्टेप है वो आइडिया है. ठीक है, मीन्स इट इज़ अ प्लानिंग स्टेज. इन फर्स्ट स्टेप द कम्युनिकेटर डेवलप्स और मेक अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडिया टू बी सेंड. दिस आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट. ओके, तो पहले क्या होगा, सेंडर एक प्लान करेगा कि मैसेज सेंड करना है. ठीक है, क्या मैसेज सेंड करना है, किस तरह से लिखना है, उसमें क्या मैसेज होगा, ये सब पहले प्लानिंग के अंडर होगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, डेवलपिंग एन आइडिया बाय द सेंडर. ठीक है, जैसे हम लेटर राइटिंग करते हैं तो लेटर में सब्जेक्ट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट में फिर हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी, की पॉइंट्स, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस करस्पॉन्डेंस में देखा. ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. देन 7 C's में देखा हमने कि उसमें करेक्टनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए. तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो सेकंड जो है स्टेप वो है एनकोडिंग. एनकोडिंग मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ठीक है, मीन्स सेंडर चूजेस करेक्ट सिंबल एंड साइंस. ओके, so there will be no spelling mistake in the message or in the content. Then his knowledge level, skill, attitude, competence and the background have a great impact on this process. तो ये ऑलरेडी हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में कवर किया है. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, द वर्बल एंड नॉन वर्बल सिम्बॉल्स, जैसे मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो ये सब कुछ जो पार्ट है वो एनकोडिंग में आएगा. एनकोडिंग इज टूवर्ड्स द सेंडर साइड. ठीक है, क्योंकि सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है. थर्ड स्टेप इज सिलेक्टिंग द मीडियम. ओके, टू ट्रांसफर द मैसेज वी रिक्वायर्ड अ मीडियम दैट कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम. So medium refers to a channel. Medium is also called as a channel or means of sending the message to the receiver, because for sending message we require a channel. Through that channel the message will be transferred. It can be through a mail or it can be through a post. Okay, तो आपको पता है अगर पोस्ट से सेंड करोगे तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होके हार्ड कॉपी रिसीवर को रिसीव हो जाएगा. मेल के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करोगे तो मेल से वो आपके होस्ट कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर में जाएगा, होस्ट कंप्यूटर थ्रू रिसीवर को सेंड होगा. सो दैट इज़ अ वायरलेस मीडिया. ठीक है, एंड द योर मेल और योर मैसेज विल बी सेंड थ्रू अ network in that case. So medium is necessary. Once the sender has encoded his idea into message, the next step is to decide on suitable medium. ठीक है, तो एक बार अगर मैसेज एनकोड हो गया मीन्स टोटल एब्स्ट्रैक्ट इज रेडी, ओके, बाय द सेंडर और फ्रॉम द सेंडर एंड, देन he will decide
the medium through which that message will be transferred to the receiver. ठीक है, the sender must decide an appropriate medium for transmitting the message to the desired recipients. Recipients means receiver. ओके, जैसे हम मेल में रिसिपिएंट डालते टू फ्रॉम, ठीक है, तो इस तरह से द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडियम विल बी डिपेंड ऑन द सेंडर. ओके, तो ये जो चॉइस होगी दैट विल डिपेंड ऑन द सेंडर, किस तरह से उसको मैसेज ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, स्टेप नंबर 4 इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. ठीक है, तो मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होगा. ठीक है, इन दिस स्टेप द सेंडर इम्पार्ट्स द मैसेज थ्रू अ चूजन मीडियम. ठीक है, तो जो मीडियम चूज़ किया है उसके थ्रू मैसेज विल बी सेंड एंड इट इज़ हियर दैट टास्क ऑफ सेंडर ऑफ द मैसेज गेट कंप्लीट. ठीक है, तो ये जो टास्क है मैसेज सेंडिंग का दैट विल बी अ सेंड बाय द सेंडर एंड, मीन्स सेंडर का काम यहाँ तक हो गया. ठीक है, आइडिया को डेवलप किया, मीन्स क्या मैसेज ट्रांसफ़र करना है फर्स्ट, देन एनकोड किया, मीन्स उसका टोटल अब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब जो पार्ट्स है तो ये स्किल्स एटीट्यूड्स, तो ये सब एनकोडिंग पार्ट में आएगा. ठीक है, उसके बाद मैसेज रेडी होने के बाद सिलेक्टिंग द मीडियम, किस तरह से सेंड करना है. ठीक है, तो मीडियम सिलेक्ट होने के बाद एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. ठीक है, तो ये सेंडर का काम यहाँ तक एंड हो गया टोटल. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ फॉर द रिसीवर, सो दैट इज़ द फिफ्थ, रिसीविंग द मैसेज. ठीक है, दिस स्टेज सिंपली इन्वॉल्व द रिसेप्शन ऑफ सेंडर्स मैसेज. तो सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है दैट कैन बी रिसीव बाय द रिसीवर और रिसिपिएंट एंड डिकोड that message, means read that message, okay, by the reader or by the receiver for whom the message is intended, aim and targeted. ठीक है, तो जिसके लिए मैसेज सेंड किया गया है टारगेटेड. ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, डिकोड करेगा, मीन्स उसको अंडरस्टैंड करेगा. सो दैट इज़ द फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट वन इज द डिकोडिंग. डिकोडिंग इज़ द रिसीवर इंटरप्रिटेशन टू द सेंडर मैसेज. ठीक है, तो जो मैसेज में जो राइटअप लिखा हुआ है, राइटिंग, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करेगा रिसीवर और इट विल डिकोड दैट मैसेज. And the decoding requires, means this stage requires the knowledge of receiver or the past experience and viewpoints of the receiver. Only both the sender and receiver ascribe the same meaning to the message, then effective communication will be takes place. ठीक है, तो जिस तरह से सेंडर ने मैसेज लिखा हुआ है तो उसमें जो मीनिंग्स है उस सब्जेक्ट्स का या उस मैसेज का क्या मीनिंग है दैट कैन बी फुल्ली अंडरस्टैंडेड बाय रिसीवर एंड. ठीक है, तो उसको समझना चाहिए कि सेंडर ने मैसेज में क्या लिखा है. ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट विल बी हैपन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. नहीं तो सेंडर ने जो मैसेज में लिखा हुआ है वो रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर सका. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मीन्स वहाँ पे लिखा कुछ है मैसेज में, आप अंडरस्टैंड कुछ अलग कर रहे हो. ठीक है, मैसेज को, सो दैट इज़ नॉट अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. एंड लास्ट वन, सेवंथ स्टेप इज फीडबैक. सो दैट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ communication process, feedback. The feedback is the fundamental component of communication process that allows the sender to analyze the effectiveness of the message. It ensures that receiver has correctly understood the message. With presence of feedback, it becomes a complete cycle of communication. It helps the sender in confirming the correct interpretation of message by the decoder. Feedback may be verbal, that is through words, or non-verbal in the form of smile, sights. It may take a written form and also form of memos, reports. Feedback is essence of two-way communication. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया
कि फीडबैक इज द पार्ट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. ओके, मीन्स जैसे रिसीवर को मैसेज रिसीव होगा, इट विल डिकोड दैट मैसेज, मीन अंडरस्टैंड दैट मैसेज एंड इट विल रिप्लाई. ओके, रिप्लाई इज नथिंग बट द some form of feedback from the receiver to the sender. Okay, so in reply it will the communication will be through a words. It can write uh, in terms of word a message for feedback purpose to the sender, or it will be in the form of smile sides. So that is also a feedback from receiver to the sender. Okay, so this is the feedback point. So these are the total 7 steps for effective communication. ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आया तो आपको ब्लॉक डायग्राम निकालना और ये सब चीज़ें टोटल जो 7 स्टेप्स है तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है. तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू.